Good morning, students. How are you all? Now, student, in my previous classes, I have already discussed about agricultural sector of India on the eve of independence, industrial sector of India on the eve of independence, and our international trade on the eve of independence. Now, this is the first chapter of Indian economic development book. This is Indian economy on the eve of independence, and this is the fourth topic I am going to teach you. The topic name is demographic profile. Demographic profile during British rule. Demographic profile during British rule. बच्चों, the meaning of demographic is जनसांख्यिकी. मतलब what is the statistics of population of India during British rule. Student, we have to learn in this topic the statistics of population of India during British rule. Student, this is very important topic. As in board examination, there are 2 or 3 marks questions come from this section. So, student, you need to focus in this topic very carefully, because it is one of the most important topic to understand. So, demographic profile, जनसांख्यिकी, it means that population. Okay, after census, after population census, we can easily understand the demographic profile of any country. Because in population census, not only the number of people counted, but also the sex, the economic status of the people, the health and hygiene of the people, education level of the people, these also counted in demographic profile. So, student, first of all, you need to understand the history behind it. Student, the population census of India is detailed estimation of population size along with the complete demographic profile of the country. Student, census of India has been conducted 15 times as of 2011. इसका मतलब यह हुआ कि लास्ट सेंसस जो 2011 में हुआ था वो भारतवर्ष का 15वां सेंसस था. वाइल इट हैज़ बीन अंडरटेकन एवरी 10 years, यानी कि हर 10 साल पे ये होता है. इट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू गिव द एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन इन 2021, एंड जो 16 पॉपुलेशन सेंसस होगा वो 2021 में इंडिया का होने जा रहा है. सबसे पहला जो सेंसस था 1872 में वाइसराय लॉर्ड मायो, वाइसराय जो थे अंग्रेजी शासन के जो वाइसराय थे हमारे लॉर्ड मायो, 1872 यानी 1872 में लिया गया था. लेकिन वो कंप्लीट सेंसस नहीं था, क्योंकि उसमें केवल नंबर ऑफ़ पीपल का काउंटिंग किया गया था. उसमें जो स्टेट्स थे, जो प्रोविंस थे, बस उन्हीं का. लेकिन जहाँ पे डच पोर्टुगीज़ का जो रूल्स था वहाँ पे काउंटिंग नहीं हुआ था. तो इसलिए 1881 में कंप्लीट जो सेंसस हुआ इंडिया में वो माना जाता है कि द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल held in 1881. Who conducted it? लॉर्ड मायो. स्टूडेंट, इस सेक्शन से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे आप नोट डाउन कर लें. भारत में सबसे पहला द फर्स्ट कंप्लीट पॉपुलेशन सेंसस was taken in 1881 in India during the time of Viceroy Lord Mayo. स्टूडेंट, डेमोग्राफिक प्रोफाइल को समझने के लिए, डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में अच्छे से फोकस करने के लिए, जानने के लिए हम लोगों को 2-4 पैरामीटर हैं उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है. जैसे पहला है बर्थ रेट एंड डेथ रेट. बर्थ रेट और डेथ रेट की जानकारी होनी चाहिए. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट,
and demographic transition of that country. If you know these all parameter, then you will able to understand the demographic profile of any country. So let us start from the first parameter, birth rate and death rate. A student, in this section, objective question may be asked birth rate and death rate during the time of British rule. A student, both birth rate and death rate were very highly, nearly 48 and 40 per thousand respectively. A student, birth rate is what? What is birth rate? Birth rate is what? The particular number of babies, the particular number of newborn babies in particular group during a specific period of time. तो पार्टिकुलर ग्रुप में यहाँ पे क्या है? पर थाउजेंड, यानी कि 1000 लोगों के समूह में जो बर्थ रेट था वो था 48, और 1000 लोगों के समूह में जो डेथ रेट था वो 40 पर थाउजेंड रेस्पेक्टिवली था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल. So high birth rate and high death rate suggest a state of massive poverty in the country. जबकि अकॉर्डिंग टू 2018 का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार द बर्थ रेट ऑफ इंडियन इकॉनमी इज़ 18 पर थाउजेंड and the death rate is 7 per thousand. So this is also get to know that you have to mention it in your note copy. According to the population census report 2018, the birth rate of India is at present 18 per thousand and the death rate is 6 per thousand. Now during that time the death rate was what? 40 per thousand. What it shows? It shows there was lack of medical facility, lack of hospitality during that time, due to which the death rate was very high during that time. Understand? Now come to next topic, infant mortality rate. Infant mortality rate is the rate, it is the death rate of children below the age of 1 year. यानी 1 साल से कम जो उम्र के जो बच्चे होते हैं उनका जो डेथ रेट कितना था. तो रियली इट इज़ ऑल्सो वेरी हाई ड्यूरिंग दैट टाइम. इट वाज अबाउट 218 पर थाउजेंड. 1000 में 218 बच्चे 1 साल से कम उम्र के मर जाते थे उस समय. कॉन्ट्रास्टिंग शार्पली विथ 42 पर थाउजेंड एट प्रेजेंट, बट नाउ only 42 per thousand at present. It means that there is a facility of immunization. तरह तरह के इंजेक्शन टीके के ज़रिए बच्चे जो हैं वो तरह तरह की घातक बीमारियों से बच जाते हैं और वो जीवित रह जाते हैं. इस वजह से आज के डेट में जो डेथ रेट है हमारा बहुत कम हुआ है. तो हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ ए साइन ऑफ पुअर हेल्थ केयर एसोसिएटेड विथ एक्सट्रीमली पॉवर्टी. Now the third point is life expectancy. Life expectancy means average life of a person. मतलब कि एक व्यक्ति की औसत आयु कितनी होती है पॉपुलेशन में, उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, एवरेज लाइफ ऑफ ए पर्सन. स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया कि उस समय लैक ऑफ पुअर हॉस्पिटैलिटी एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, डेथ बहुत ज़्यादा होता था. तो उस दौरान ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश पीरियड, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल वाज 32 ईयर्स. इसको याद रखिएगा. ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल वाज 32 ईयर्स. नाउ एट प्रेजेंट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल इज 66 ईयर्स. The 32 years life expectancy shows lack of awareness of hospitalization, medical facilities. Now see in this figure what is written. High mortality rate and low life expectancy are important social indicator of backwardness
and poverty of masses. During the British rule, frequent famines and recurring epidemics means Mahamari, famines means Akal, Bhukmari. These were the primary causes behind a high mortality rate. बच्चों, उस दौरान पुअर इरिगेशन फैसिलिटीज़ के वजह से, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ के वजह से हर साल या 1 साल 2 साल बीच करके फेमाइंस और एपिडेमिक्स इंडिया में आते रहते थे, जिस वजह से जो मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत हाई था. वाइल फेमाइंस ऑकर्ड लार्जली ड्यू टू ड्राउट्स, एपिडेमिक्स ऑकर्ड ड्यू टू अटर नेग्लेक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज. फेमाइंस किसकी वजह से होता था? सूखा पड़ जाने की वजह से. और एपिडेमिक जो महामारी होता था वो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के नेग्लिजेंसी के वजह से होता था. सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम भारतवर्ष में जो एवरेज लाइफ होता था लोगों का वो 32 ईयर्स होता था. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द नंबर 4, लिटरेसी रेट. स्टूडेंट साक्षरता दर, रेफरिंग टू दोज हु कैन रीड एंड राइट. ओके, in India it is assumed that a person who can read and write, the person will be counted as literate person. So the literacy rate was nearly 16%, reflecting social backwardness as a reflection of economic backwardness. Female literacy rate was still worse, only 7%. This indicates gender bias in the society. बच्चों, उस समय जो पुरुष वर्ग थे, जो कुल एवरेज जो लिटरेसी रेट था वो 16% था, जबकि आज जो है 74-75% हमारे इंडिया का साक्षरता दर है. फीमेल लिटरेसी रेट कितना था? 7%. सोचिए ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है जेंडर बायस, ठीक ना, यानी कि लिंग मतभेद, ठीक ना. पुरुषों को प्राथमिकता अधिक मिलती थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए और महिलाओं को कम दिया जाता था. लेकिन आज जो फीमेल जो कंट्रीब्यूशन है लिटरेसी रेट में इंडिया का वो 67 से 69% तक है. तो कहीं ना कहीं आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने लिटरेसी रेट हो, चाहे लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, चाहे बर्थ रेट हो, चाहे डेथ रेट हो, चाहे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हो, उसमें हम लोगों ने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है. और लास्ट आता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस. यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बच्चों, एग्ज़ाम के लिए ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए. तो इसका जो न्यूमेरिकल डेटा है 5 पॉइंट्स का, उसको आप लोग अच्छे से लर्न कीजिएगा. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 1921 इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. फ्रॉम दिस टॉपिक द क्वेश्चन विल आस्क्ड बाय द CBSE, why 1921 is regarded as the year of great divide? Because prior to 1921 population growth in India was never consistent. Never consistent का मतलब कि लगातार वृद्धि नहीं कर पाया, लगातार उसमें ग्रोथ नहीं हुआ, ठीक है ना. 1921 से पहले जो पॉपुलेशन था इंडिया का, कभी किसी साल अधिक हो जाता था, तो कभी बहुत कम हो जाता था, कभी ज़्यादा कभी कम, मतलब देयर वाज फ्लक्चुएशन इन द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया बिफोर 1921. साइज ऑफ पॉपुलेशन केप्ट फ्लक्चुएटिंग, इंक्रीज इन वन सेंसस एंड डिक्रीजिंग इन द अनदर सेंसस. आफ्टर 1921 पॉपुलेशन इन इंडिया रिकॉर्डेड ए कंसिस्टेंट राइज. और 1921 के बाद द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कंसिस्टेंटली राइजेस. और आज तक भी आज एट प्रेजेंट टाइम भी हमारा जो पॉपुलेशन है वो कंसिस्टेंटली राइज कर रहा है. Thus the census 1901 showed a decline of 0.04 crore in total population. 1901 में जो सेंसस हुआ था उसमें पॉपुलेशन कितना डिक्लाइन हुआ था? 0.04. The census 1911 shows a rise of 1.38 crore and the census 1921 showed a decline of 0.07 crore.
तो देखिए 1901 में पॉपुलेशन हमारा कितना डिक्लाइन हुआ, 0.04 करोड़। फिर 1911 में ये राइज हो गया 1.38 करोड़। एंड देन 1921 में फिर से ये डिक्लाइन हो गया 0.07 करोड़। दैट वाज द लास्ट डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन दैट ईयर। 1921 में जो हमारा पॉपुलेशन था अंतिम बार डिक्लाइन हुआ था 0.07 करोड़। उसके बाद से लेकर आज तक हमारा पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1921 के बाद से हमारा पॉपुलेशन कंसिस्टेंटली राइज हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस। इसको समझने की ज़रूरत है, आप लोग इसको पढ़िएगा घर पे और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसका नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। बच्चों, पर डे एक एक टॉपिक मैं क्लियर करते जा रहा हूँ। इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी समस्या हो, इफ़ यू गेटिंग एनी प्रॉब्लम related to any topic, you can ask in WhatsApp group, I will help you. But a student, try to manage all the things because the tough time is going on. We have to we have to contribute our best togetherly, because only 2 and 3 student participation is not good. Okay, so try to do your best, because time is precious for you, because you are going to give board examination next year. So student, keep focus in study. Thank you.